بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آپ کی کہانی کی طرف۔ سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے کہ یونان کے ایک گاؤں میں سرتوز نامی ایک کسان کا بیٹا تھا۔ کسان بیچارہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا، پھر جا کر مشکل سے دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی، مگر سرتوز سارا دن آوارہ گھومتا رہتا۔ اس کا باپ اسے بہت سمجھاتا کہ بیٹا تو میرے ساتھ کھیتوں میں کام پر چلا، یوں آوارہ گھوم کر اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہا ہے۔ سرتوز آوارہ نہیں تھا بلکہ بڑی ہمت والا تھا۔ بات دراصل یہ تھی، جب سرتوز ابھی 10 برس ہی کا تھا تو ایک دن اس کا چچا اسے گھمانے پھرانے کے لیے پرانے کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ساتھ لے لی تھی۔ وہ اسے دوپہر تک ان کھنڈروں میں گھماتا پھراتا رہا۔ جب دوپہر ہوئی تو ایک کھنڈر کی چھت کے نیچے بیٹھ کر ان دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ جب خوب پیٹ بھر گیا تو سرتوز کے چچا نے ایک پیالے میں دودھ ڈالا اور پیالہ سرتوز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو بھتیجے، اب یہ دودھ بھی پی لو۔ نہیں چچا، میرا پیٹ خوب بھر گیا ہے، ٹھہر کر پی لوں گا، سرتوز نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، یہ کہتے ہوئے اس کا چچا دودھ پی گیا اور پھر ڈکار لیتے ہوئے لیٹ گئے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ سرتوز وہیں بیٹھا رہا، دودھ کا پیالہ بھی اس کے قریب پڑا تھا، اور پھر اچانک ایک بل میں سے ایک سفید ناگن نمودار ہوئی اور رینگتے ہوئے وہ سرتوز کے قریب آ گئی۔ سرتوز اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ناگن اسے بہت اچھی لگی کیونکہ اس کی سفید چمکدار جلد بہت ہی خوبصورت تھی۔ ناگن نے سرتوز کے قریب پڑے ہوئے دودھ کے پیالے میں منہ ڈالا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گئی اور پھر رینگتی ہوئی دریا کے سمت چل دی جو ان کھنڈرات کے قریب سے بہہ کر گزر رہا تھا۔ سرتوز نے یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر اس ناگن کے پیچھے چل دیا، اور پھر جیسے ہی ناگن دریا کے کنارے پہنچی تو ایک دم وہ انسانی روپ میں آ گئی اور سرتوز کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سرتوز پہلے تو خوفزدہ ہوا، مگر پھر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ دراصل سرتوز بہت نڈر اور بہادر بچہ تھا۔ سرتوز، تمہارا بہت بہت شکریہ، ناگن بولی۔ کس بات کا؟ سرتوز نے ہمت سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے دودھ پلانے کا۔ اگر تم چاہتے تو میرے آگے سے پیالہ اٹھا لیتے یا اپنے چچا کی طرح اپنے حصے کا دودھ پی لیتے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میرا پیٹ بھرا ہوا تھا اور تم نے دودھ پی لیا تو اچھا ہی کیا، ورنہ چچا اٹھ کر ڈانٹتے کہ میں نے دودھ ابھی تک کیوں نہیں پیا۔ خیر، تم پھر بھی بہت اچھے بچے ہو اور بہادر بھی۔ تمہاری جگہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو یا تو مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا یا پھر پتھر اٹھا کر میرا سر کچلنے کی کوشش کرتا، ناگن بولی۔ ہاں، یہ صحیح ہے، سرتوز بولا۔ پھر تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ناگن بولی۔ وہ اس لیے کہ تم مجھے بہت اچھی لگی تھی، سرتوز بولا۔ سرتوز، تمہیں پتہ ہے یہ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں کسی زمانے میں شاندار محل ہوا کرتے تھے، ناگن نے کہا۔ ہاں، میرے چچا نے بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں ایک کنجوس بادشاہ ہوا کرتا تھا، یہ محل اسی نے بنوایا تھا، سرتوز نے کہا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں وہ اپنی دولت کا ڈھیر لگاتے اور چھپا کر رکھتے ہیں، ناگن نے کہا۔ ہمارے محلے میں بھی ایک کنجوس آدمی رہتا تھا، اس نے بھی اپنا روپیہ کہیں چھپا چھوڑا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد کو 1000 کوشش کے بعد بھی کچھ نہیں ملا، سرتوز بولا۔ سرتوز، تم اس بادشاہ کا خزانہ دیکھو گے؟ ناگن بولی۔ ہاں ہاں، کہاں ہے؟ سرتوز نے پوچھا۔ تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ناگن بولی، اور پھر سرتوز اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ناگن اسے کھنڈروں میں گھماتے ہوئے ایک ایسی جگہ لے گئی جو آگے سے بند تھی۔ پھر ناگن نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس دیوار میں خود بخود راستہ بن گیا۔ یہ ایک زینہ تھا۔ ناگن اس زینے سے سرتوز کو لے کر نیچے اترنے لگی۔ نیچے اندھیرا تھا، مگر ناگن کے تاج میں جو بڑا ہیرا جڑا ہوا تھا اس کی روشنی میں اندھیرا صاف ہو جاتا تھا۔ سرتوز سیڑھیاں اترتے اترتے کچھ خوفزدہ ہو رہا تھا۔ دراصل اب اسے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ناگن انسانی روپ میں کیسے آئی۔ آخر وہ بچہ تھا، اس وقت اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 10 برس کی ہوگی۔ ناگن نے اس کے چہرے سے اس کا خوف بھانپ لیا اور بولی، سرتوز، ہم تو اچھے دوست ہیں، پھر تم مجھ سے خوفزدہ کیوں ہو؟ تم ناگن سے انسان کیسے بن گئے؟ سرتوز بولا۔ سرتوز، میں ناگن رانی ہوں اور مجھ میں ایسی قوت ہے کہ میں کوئی بھی روپ دھار سکتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ میں نے رانی ہوتے ہوئے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ حالانکہ تم ایک غریب کسان کے بیٹے ہو، مگر مجھے اس سے کیا؟ میں نے تو تمہیں نیک اور نڈر دیکھا تو تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اب میں ہمیشہ تمہاری مدد کیا کروں گی، اور یہ جو خزانہ میں تمہیں دکھانے جا رہی ہوں ایک دن تمہارا ہوگا، مگر ابھی نہیں، جب تم جوان ہو جاؤ گے اس وقت۔
اور پھر کچھ دیر بعد یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک بہت بڑے ہال کمرے میں جا پہنچے۔ اس کمرے کی چھت 50 ستونوں پر کھڑی ہوئی تھی اور تمام ستون سب سنگ مرمر کے تھے۔ یہ کمرہ یوں جگمگا رہا تھا جیسے ہزاروں کندیلیں روشن ہوں۔ دراصل یہ روشنی ان تمام ہیرے جواہرات کی تھی جن کے ڈھیر تمام کمروں میں لگے ہوئے تھے۔ سونے اور جواہرات کے تخت تھے، کرسیاں تھیں، مسہریاں تھیں، اور تو اور سونے کے مجسمے تھے جن میں جواہرات جڑے تھے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر سرتوز خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا تھا، اور پھر ناگن اسے واپس لے آئی۔ جب یہ زینہ چڑھا آئے تو وہ دیوار پہلے کی طرح ہو گئی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیوار کے پیچھے ایک زینہ ہے جو نیچے ایک بہت بڑے خزانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ پھر دریا کے کنارے آ گئے۔ اچھا سرتوز، اب تم جاؤ، تمہارا چچا اٹھ جائے گا اور تمہیں نہ پا کر پریشان ہوگا، مگر میری ایک بات پلے باندھ لو کہ نہ تم میرے بارے میں کسی کو بتاؤ گے اور نہ ہی اس خزانے کے متعلق، تو پھر نہ میں ہی تم سے کبھی ملوں گی اور نہ ہی تم کبھی یہ خزانہ حاصل کر سکو گے، سمجھ گئے؟ ناگ رانی نے سرتوز کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور سرتوز نے ناگ رانی سے وعدہ کر لیا کہ وہ کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ اور پھر ناگ رانی ایک دم ناگن کے روپ میں آ کر ایک طرف چلی گئی۔ سرتوز بھی واپس اپنے چچا کے پاس آ گیا۔ اس کا چچا اب بھی سو رہا تھا۔ سرتوز کے قدموں کی آہٹ پا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں ملتے ہوئے بولا، سرتوز بیٹا، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اور پھر سرتوز اپنے چچا کے ساتھ گھر آ گیا۔ تمام راستے وہ گمسم سا رہا۔ کیوں بھائی، یہ تم چپ کیوں ہو؟ آج کی سیر کیسی رہی؟ اس کا چچا بولا، پر سرتوز ابھی بھی خاموش رہا۔ یہ لوگ درختوں کے جھنڈ کے نیچے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک درخت پر سے ایک نہایت خوفناک سیاہ رنگ کا جنگلی بلّا، جس کی آنکھیں کسی دیے کی طرح روشن تھی، سرتوز پر حملہ آور ہوا۔ 10-11 برس کے اس نڈر سے لڑکے نے اسے پوری قوت سے دور اچھال دیا۔ یہ حرکت اس سے اچانک سرزد ہوئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس خطرناک بلے نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ سرتوز کے چچا نے یہ دیکھ کر اپنی لاٹھی بلند کی، اس سے پہلے کہ اس کی لاٹھی بلے پر پڑتی یا پھر بلّا ہی دوبارہ ان پر حملہ کرتا۔ قریب ہی جھاڑیوں میں سے ایک ناگ رینگتا ہوا نکلا اور بلے کے سامنے پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے جو بلّا غضبناک ہو رہا تھا، اس ناگ کو دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹنے لگا، اور پھر اس کے منہ سے گھوٹی گھوٹی آواز نکلنے لگی۔ وہ ایک دم پلٹا اور نہایت سرعت کے ساتھ جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ناگ بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ اس عجیب واقعے سے سرتوز کا چچا بڑبڑایا اور پھر سر کو جھٹک کر سرتوز کا بازو پکڑ کر آگے بڑھا، تو اسے ناگ رانی کی بات یاد آ گئی کہ اس نے سرتوز سے کہی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گی۔ وہ جان گیا سیاہ ناگ کو ناگ رانی ہی نے اس کی مدد کو بھیجا ہوگا۔ اور پھر یہ لوگ گھر آ گئے۔ دن گزرتے گئے اور سرتوز جوان ہو گئے۔ اس دوران ناگ رانی اسے کبھی نہیں ملی۔ وہ اکثر کھنڈرات میں جاتا تاکہ ناگ رانی سے ملاقات ہو، مگر ناگ رانی اسے نہ ملی۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ کام کاج کرے، مگر سرتوز کو تو ناگ رانی سہانے سپنے دکھا گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ ایک دن بڑا آدمی ضرور بنے گا۔ ایک دن وہ حسب معمول ان کھنڈرات کی طرف گیا اور دریا کے کنارے چہل قدمی کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہوگی کہ دریا میں سے ایک جل پری نمودار ہوئی، جس کے سر پر تاج تھا اور تاج میں ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سرتوز نے قصے کہانیوں میں جل پری کے قصے تو سنے ہوئے تھے، مگر جل پری اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ سرتوز، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ جل پری بولی۔ سرتوز کو حیرت ہوئی کہ یہ تو اس کا نام بھی جانتی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، میں یہاں ناگ رانی کی تلاش میں آتا ہوں جو 7-8 برس پہلے مجھے اسی جگہ ملی تھی۔ وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی، مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، ایک خزانہ مجھے دینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے پھر کیا ہوا کہ وہ مجھے کبھی نہیں ملی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ سرتوز، ناگ رانی واقعی تمہاری خیر خواہ ہے، مگر وہ بیچاری ایک ظالم سپیرے کے قبضے میں ہے جو اس سے ناگ منی حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ناگ رانی اس کے ظلم سے کر بھی اسے ناگ منی دینے پر رضامند نہیں۔ دراصل وہ ناگ منی تم کو دینا چاہتی ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی مدد کو جاؤ، جل پریوں کی ملکہ نے کہا، مگر مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ سپیرا کہاں ہے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں، مگر تم میری مدد کے بغیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بلکہ الٹا وہ تمہیں کسی ناگ سے ڈسوا دے گا یا پھر تم پر جادو کر کے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اسے تم پر ذرا ترس نہیں آئے گا، جل پری کہتی چلی گئی۔ مگر تم میری مدد کس طرح کرو گی؟ سرتوز بولا، تم میرے ساتھ دریا میں آؤ، میں تمہیں دریا کی جادوگرنی کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ تمہیں ایک ایسی دوا پلائے گی کہ نہ تو تم پر کسی سانپ کے زہر کا اثر ہوگا اور نہ ہی تم پر کچھ جادو اثر کرے گا۔ جل پری بولی، مگر میں تو پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ سرتوز نے کہا، نہیں، تم پانی میں نہیں ڈوبو گے۔ پانی ہمارا غلام ہے، ہماری دریاؤں اور سمندروں پر حکومت ہے۔ جب تم میرے ساتھ ہوگے تو تمہیں پانی محسوس ہی نہیں ہوگا۔ جل پری کی بات سن کر
सरतूज पानी में उतर गया और फिर उसने जल परी के साथ पानी में डुबकी लगा दी। लम्हे भर को तो वो सख्त हैरान हुआ, क्योंकि उसके सामने बड़ी अजीब दुनिया थी। दरिया के बासी उन लोगों को देखकर रास्ता छोड़ देते। उस दरिया की गहराई समंदर की तरह थी। नीचे चट्टानें थी जिनमें रंग बिरंग की मछलियों ने ठिकाने बनाए हुए थे। और फिर ये दोनों एक सुरंग नमा गार में दाखिल हुए जहां पानी था। उस दरिया में ये गार यूं खुश्क था जैसे शीशे की दीवार ने पानी रोक रखा हो। सरतूज ने देखा कि एक बुढ़िया धुनी मारे बैठी थी। यह अजीब दरिया था, इसमें आग जल रही थी और धुआं भी उठ रहा था। बुढ़िया कोई मंत्र पढ़ते हुए कोई सफूफ बार बार आग में डाल रही थी। उस धुएं में से भूतने से उठ रहे थे और गायब हो रहे थे। अजीब तमाशा था जो सरतूज ने यहाँ देखा। इतने में बुढ़िया जादूगरनी की निगाह अपनी मलिका पर पड़ गई और उसने अपना हाथ रोक लिया। आओ मलिका, कैसे आना हुआ? और ये आदमजाद कौन है जिसे आप यहाँ ले आई हैं? ये एक बहादुर जवान है, नाग रानी की मदद करना चाहता है। मैं उसे तुम्हारे पास इसलिए लाई हूँ कि आप उसे सरताब पिलाएं, ताकि उसमें वो कुव्वत पैदा हो जाए जिससे वो नाग रानी को जालिम शख्स से बचा लाए। जलपरी मलिका ने कहा और उसके हुक्म पर फौरन ही जादूगरनी ने वो पानी तैयार करके सरतूत को पिला दिया, जिसके पीने के बाद उसे खुद में अजीब सी कुव्वत महसूस हुई। और फिर एक बार जलपरी उसे दरिया के किनारे ले आई और बोली, देखो सरतूत, तुम्हें शायद इस बात का पता ना होगा कि रानी का एक नाग हर वक्त तुम्हारे करीब रहता है। नाग रानी का उसे यही हुक्म है। तुम्हें याद होगा बरसों पहले एक जंगली बिल्ली ने तुम पर हमला किया था। उस वक्त उसी नाग ने तुम्हें बचाया था। अब वही तुम्हें उस सपेरे के मस्कन तक ले जाएगा। मगर वो नाग कहाँ है? अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने करीब देखा तो एक स्याह नाग अपना फन उठाए मौजूद था। ये आवाज़ स्याह नाग की थी। सरतूत को तो इस बात पर हैरत हुई कि नाग इंसानों की तरह बातें कर रहा था। तुम मुझे उस मकाम पर ले चलोगे? सरतूत नाग से मुखातिब हुआ। हाँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, नाग ने कहा और फन को जमीन पर रखकर रेंगता हुआ एक सिमत चल दिया। जलपरी मलिका ने मुस्कुराते हुए उसे जाने का इशारा किया और सरतूत के पीछे चल दिया। सरतूत नाग की लकीर पर नजरें लगाए आगे बढ़ रहा था। उसे हैरत हो रही थी क्योंकि उसके पांव के नीचे से जमीन सिमटी जा रही थी। और फिर कुछ ही देर बाद एक मकाम पर नाग रुक गया। सरतूत भी खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। अजीब सा इलाका था जहां से कुछ दूर एक बस्ती नजर आ रही थी। नाग बोला, सरतूज, वो सामने जो बस्ती नजर आ रही है, नाग रानी वहीं कैद है। मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि जालिम सपेरा मुझे भी पकड़कर पटारी में कैद कर देगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है तुम उस जालिम सपेरे को अंजाम तक पहुंचाकर नाग रानी को छुड़ा कर लाओगे। उस सपेरे का नाम क्या है? सरतूज ने पूछा। उसका नाम बंधियाल है। वो सपेरों का सरदार है। उसकी उम्र 100 बरस से ज्यादा है, मगर वो कद काठ का मजबूत है, नाग ने बताया। और फिर सरतूज उस बस्ती की तरफ बढ़ा। देखने में तो बस्ती करीब ही नजर आती थी, मगर सरतूज को वहां पहुंचने में खासी देर लगी। जब वो बस्ती में दाखिल होने लगा तो करीब ही एक कुएं पर उस बस्ती की लड़कियां पानी भर रही थी। सरतूज उनके करीब गया। दरअसल उसे प्यास लगी थी। एक लड़की जिसका नाम सरोजनी था, वो बंधियाल की पोती थी। उसने जब एक मुसाफिर को उस तरफ आते देखा तो वो समझ गई कि प्यासा है। उसने आगे बढ़कर उसे पानी पिलाया। परदेसी कहाँ से आ रहे हो? उसने पहली बार जुबान खोलते हुए पूछा। मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, सरतूज ने कहा। फिर तो तुम भूखे भी होगे, उनमें से एक और लड़की बोली। हाँ, इस बस्ती में किसी दुकान से कुछ खरीद कर खा लूंगा। नहीं नौजवान, हमारी बस्ती में किसी मुसाफिर को कोई चीज़ फरोख्त नहीं की जाती। मुसाफिर सरदार का मेहमान होता है। सब चीज़ें मेहमान खाने में पहुंचा दी जाती हैं जहां मेहमान को ठहराया जाता है। तुम सीधे बढ़े जाओ, एक बड़े मकान के साथ मेहमान खाना है, वहां जाकर ठहरो, एक और लड़की बोली। मगर पहले यहाँ के सरदार से मिलना चाहता हूँ, सरतूज ने कहा। हमारा सरदार किसी मुसाफिर से नहीं मिलता, और वैसे भी आजकल वो अपने मकान से बाहर नहीं निकलता, उसी लड़की ने बताया। मुसाफिर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सरदार से मिला सकती हूँ। तुम कौन हो? सरतूज ने पूछा। यह हमारे सरदार की पोती है, इसका नाम सरोजनी है, एक लड़की ने बताया। सरतूज ये जानकर खुश हुआ। उसने पानी पिया और एक तरफ होकर खड़ा हो गया। जब सब लड़कियों ने अपने अपने बर्तन भर लिए तो सरोजनी बोली, मुसाफिर हमारे पीछे पीछे चले आओ। सरोजनी ने सरतूज को मेहमान खाने में ठहराया और एक खादिम से बोली, उनके लिए खाना ले आओ। और फिर वो सरतूज से मुखातिब हुई। देखो मुसाफिर, तुम आराम से खाना खाओ, इतने में अपनी दादा से इजाज़त लेकर तुम्हें उससे मिलाती हूँ। यह कहकर वो एक दरवाजे से चली गई। सारा दिन गुजर गया मगर उस कमरे में कोई नहीं आया। शाम को वही खादिम फिर उसके लिए खाना ले आया। खाना क्या था? बाजरे की रोटी और छोटे से बर्तन में कोई सब्जी थी। एक बर्तन पानी से भरा था
सरतूत को भूख लगी थी। उन्होंने रोटी से पेट की आग बुझाई। थोड़ी देर बाद खादिम बर्तन लेने आया तो सरतूत बोला, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूँ। वो आज नहीं मिल सकते, खादिम ने जवाब दिया, मगर तुम्हारे सरदार की पोती ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने दादा से मिलाएगी। तुम उसे ही मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सरतूत बोला, सरदार ने उसे भी तुमसे मिलने को मना कर दिया है, वो यहाँ नहीं आ सकती। खादिम से यह सुनकर सरतूत समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है, कहीं सपेरों को उसके इरादों का इल्म तो नहीं हो गया। खादिम जब बर्तन उठाकर चला गया तो सरतूत बेचैनी के साथ कमरे में टहलने लगा। खादिम जाते वक्त दिया जला गया था, जिसकी लौ के गिर्द पतंगे रक्स करने लगे थे। जब खास की रात गुजर गई तो सरतूत उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिधर से सरोजनी गई थी। उसने जैसे ही दरवाजे पर जरा सा हाथ रखा, दरवाजे बगैर चरचराहट के खुलता चला गया और उस कमरे में भी एक दिया जल रहा था और कमरे में बहुत सी पटारियां थी। सरतूत जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उन पटारियों के सांप बेचैनी से कुल बुलाने लगे। ये सब अपनी रानी की मदद करने से कासिर थे। सपेरे ने उन पर ऐसा मंत्र किया हुआ था कि सब सांप बेबस होकर रह गए थे और सपेरे का हुक्म मानने पर मजबूर थे। इस बात का सरतूत को भी अंदाजा था, वरना वो सब पटारियां खोल देता और सब सांप सपेरे को डसकर अपनी रानी को आज़ाद करा लेते। सरतूत उस कमरे का जायजा ले रहा था कि साथ ही कमरे से किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई। सरतूत ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। क्या देखता है, सरोजनी एक मसेरी पर पड़ गई और उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हैं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सरतूत ने आगे बढ़कर सरोजनी को बंधनों से आज़ाद किया। तुम यहाँ क्यों आए? सरोजनी ने खौफज़दा लहजे में कहा। मैं तुम्हारे दादा से मिलना चाहता हूँ। पर यह तुम्हें किसने बांध रखा था? सरतूत बोला, मेरे दादा ने। मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात की थी तो वो नाराज़ हुए, मगर मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें क्यों बांधा था? सरतूत ने बात काटते हुए कहा, दरअसल दादा ने नाग रानी को पकड़ रखा है और वो उससे नागमणि हासिल करने के लिए बड़े बड़े जुल्म करते हैं। ये जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मैंने एक दो बार नाग रानी को आज़ाद भी करना चाहा था, मगर दादा को पता चल गया और उन्होंने सख्ती के साथ मुझे इस काम से बाज रखा। आज भी दादा नाग रानी को नाग देवता के मंत्र लेकर जा रहे थे कि मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे बांधकर इसी कमरे में डाल दिया ताकि मैं उनके पीछे जाकर उन्हें नाग रानी पर सख्ती करने से न रोकूं। सरोजनी, क्या तुम मुझे नाग देवता के मंदिर ले जा सकती हो? मैं नाग रानी की मदद ही के लिए आया हूँ और तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। सरतूत ने कहा, तो क्या तुम इसीलिए यहाँ आए हो? सरोजनी बोली, हाँ, मैं नाग रानी की मदद करने के लिए आया हूँ और उसे ज़रूर आज़ाद करा कर ले जाऊँगा। तभी जब मैंने तुम्हारे बारे में बाबा से बात की तो वो निहायत गजबनाक हुए और तुमसे मिलने से इनकार कर दिया। मुसाफिर, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगी, मगर तुम मेरे दादा को नहीं जानते, वो बहुत जालिम है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरोजनी ने खौफज़दा लहजे में कहा, तुम मेरी फिक्र न करो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस तुम मुझे फौरन वहाँ ले चलो। सरतूत बोला और फिर सरोजनी मकान के पिछवाड़े से सरतूत के साथ निकली और छुपती हुई आगे बढ़ी। ये लोग काफ़ी देर तक अंधेरे में चलते रहे। नाग देवता का मंदिर एक पहाड़ी पर था। ये लोग छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक शख्स उन दोनों के सामने आन मौजूद हुआ। सरोजनी जी, ये तुम हो और ये शख्स कौन है? उस शख्स ने पूछा। यह मेरा मित्र है, दादा अबू से मिलाने ले जा रही हूँ, मगर हमें यह हुक्म है कि कोई भी हो उसे आगे न जाने दिया जाए। उस शख्स ने कहा। उन दोनों को इस बात का अंदाजा हो गया कि यह शख्स उन्हें आगे नहीं जाने देगा और फिर सरतूत ने निहायत सरहद के साथ उस शख्स की गर्दन पर घोंसा मारा तो वो शख्स चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। अब ये लोग आगे बढ़े और मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचे। यहाँ भी एक शख्स मौजूद था और शायद नींद ने उसकी आंखें बोझल कर छोड़ी थी। उसकी उन पर नजर ही न पड़ी और ये लोग तेजी से आगे बढ़ गए। सरोजनी ने सरतोष का बाजू पकड़ा और तुलसी के एक पौधे के पीछे जा छुपी। यहाँ से 30-35 फुट के फासले पर बंधियाल चौकड़ी मारे बैठा था। करीब ही आग रोशन थी और बंधियाल के सामने नाग रानी इंसानी रूप में बेबस पड़ी थी। बंधियाल एक बर्तन में से कोई सफूफ निकालता और उस पर कुछ पड़ता और फिर वो सफूफ जैसे ही नाग रानी पर डालता तो रानी मछली की तरह तड़पने लगती, जैसे उस सफूफ से उसका जिस्म झुलसा जा रहा हो। सपेरे के चारों तरफ नागों की पटारियां खुली पड़ी थी जिनमें नाग फन उठाए खड़े थे। वो अपनी रानी की यह हालत देखकर बेचैन हो रहे थे, मगर सपेरे के मंत्रों ने उन्हें बेबस कर छोड़ा था। वो पटारी से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। सरतूत से नाग रानी की यह हालत देखी न गई और फिर जैसे ही बंधियाल ने सफूफ लेने के लिए हाथ बर्तन में डाला तो सरतूत ने अपना खंजर निकाल लिया और निशाना बांध कर सपेरे के हाथ पर मारा। खंजर बंधियाल के हाथ में जा बेवस्त हुआ, मगर उस बूढ़े सपेरे के चेहरे पर जरा भी तकलीफ का एहसास न हुआ, बल्कि वो गजबनाक हो गया और उसने दूसरे हाथ से खंजर खींचकर दूर फेंक दिया। तमाम नागों के मुंह से हैरत से फुंकारें बुलंद हुई और उनकी निगाहें उन दोनों पर उठ गई।
बंधियाल ने भी उन लोगों को देख लिया था। खासकर वो अपनी पोती को देखकर हैरान और गजबनाक होने लगा था। और फिर वो यूं उठ खड़ा हुआ जैसे कि अभी जवान हो। तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है नौजवान। तूने यहाँ तक आने के लिए एक औरत का सहारा लिया। चलो अच्छा हुआ। इस चंडाल ने जब तेरे बारे में मुझे बताया तो मैं जान गया था तू किस मकसद के लिए आया है। बंधियाल सरतूज से मुखातिब हुआ। हाँ, मैं नाग रानी की मदद को आया हूँ। और तुम खैरियत चाहते हो तो नाग रानी को आज़ाद कर दो, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। सरतूज ने कहा। इस पर बंधियाल ने एक जोरदार कहका लगाया कि पहाड़ी गूंज उठी और तमाम नाग पटारी में सेम कर बैठ गए। मगर सरतूज जरा खौफजदा ना हुआ। उसके जिस्म में नया खून था, ताज़ा खून। उसके बाजुओं में कुव्वत भी थी और जोश भी। वो बंधियाल से मुकाबले के लिए तैयार था। सपेरे ने एक मंत्र पढ़ा और वही सफूफ जो कुछ देर पहले नाग रानी पर फेंक कर उसके जिस्म को झुलसा रहा था, वो सरतूज पर फेंका, मगर उस सफूफ का सरतूज पर कोई असर न हुआ। अब तो सपेरा और भी गजबनाक हुआ और उसने जमीन पर पड़े हुए सरतूज के खंजर को उठाया और अपनी एक उंगली काट डाली और उस कटी हुई उंगली से खून बहने लगा था। उसके चीटे नाग देवता पर उछाल दिए और कोई मंत्र पढ़कर उन नागों की तरफ कुछ इशारे किए। उसके साथ ही सहमे हुए नाग गजबनाक होकर अपनी पटारियों से निकले और सरतूज की तरफ बढ़े। वो सब सपेरे के जेर असर थे, मगर सरतूज उनसे खौफजदा नहीं हुआ। और फिर एक साथ ही सारे नागों ने सरतूज को डस लिया। ये नाग इतने जहरीले थे कि उनमें एक नाग भी किसी ताकतवर शख्स को डस लेता तो वो शख्स दूसरा सांस न लेता। मगर इतने सारे नागों के जहर ने भी सरतूज पर कोई असर नहीं किया। अब तो बूढ़ा सपेरा खौफजदा हुआ, मगर सरतूज ने उसे भागने का मौका न दिया। इससे पहले कि वो आवाज देकर अपने लोगों को बुलाता, सरतूज ने आगे बढ़कर उसके हाथ से अपना खंजर छीन लिया और फिर उस खंजर से बूढ़े सपेरे का काम तमाम कर दिया। बूढ़े सपेरे के मरते ही सारे नाग अपनी रानी के आगे झुक गए। नाग रानी से भी सपेरे के मंत्र का असर जायल हो चुका था। सरोजनी अपने दादा की लाश के पास बैठ गई और बोली, दादू, तुम्हारे जुल्म का यही अंजाम होना था। मेरा बाप तुम्हें समझाता रहा कि नाग रानी को तंग न करो, उसे आज़ाद छोड़ दो, मगर तुम पर तो लालच सवार था। तुम नाग बनी हासिल करके दुनिया के ताकतवर शख्स बनना चाहते थे। तुमने अपने बेटे को धक्के मार कर घास से निकाल दिया। यही नहीं, तुमने अपने आदमियों से कहा कि उसे गांव से बाहर ले जाकर खूब मारे। और फिर तुम्हारे आदमियों ने, जो तुम्हारे मंत्रों के जेर असर थे, मेरे बाप को गांव से बाहर ले जाकर इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। जब मुझे अपने बाप की हालत का पता चला तो मैंने कसम खाई थी कि तुमसे बदला ज़रूर लूंगी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। सरतूज ने उसे तसल्ली दी, अफसोस का इजहार किया और बोला, सरोजनी, मेरा इरादा तुम्हारे दादा को हलाक करने का नहीं था, लेकिन अगर मैं उसे हलाक न करता तो अपने आदमियों को बुलाकर मुझे हलाक कर देता। ये कहकर वो नाग रानी के साथ वहां से चल पड़ा। यहाँ मौजूद तमाम नाग सर झुकाए अपनी रानी के पीछे थे। अभी ये लोग कुछ ही दूर गए थे कि सामने से वही नाग आता नजर आया जो सरतूज को यहाँ लाया था। एक बार फिर वो आगे आगे था और सब लोग उसके पीछे पीछे। अब फिर जमीन सिमट रही थी और ये लोग चंद लम्हों में दरिया के किनारे उन खंडरात के पास पहुंच गए। अभी सुबह होने में खासा वक्त था और सरतूज की आंखें बोझल हो रही थी। ये देखते हुए नाग रानी बोली, सरतूज, तुमने मेरे लिए बड़ी मुसीबतें झेली और मुझे इस जालिम के हाथों बचा लाए। मैं तुम्हारा किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं? उसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। सरतूज बोला, हाँ ये तो है, मगर मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी और तुम्हें वो कुछ बना दूंगी जिसका तुमने कभी ख्वाब में नहीं देखा होगा। नाग रानी बोली, हाँ रानी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि जो लोग आज मुझे आवारा, निकम्मा और न जाने क्या क्या कहते हैं, ये जान जाए कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। सरतूज कहता चला गया, लेकिन इस वक्त शायद तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारी आंखें नींद से बोझल भी हो रही हैं, इसलिए तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अब ये अल्फाज नाग रानी के मुंह ही में थे कि एक छपाका हुआ और जलपरी ने पानी में से सर निकाला और बोली, इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी वही सहेली हो जिसने सरतूज को मेरी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये तुम तमाम शुक्रिया अपने पास लपेट कर रखो और मुझे जलपरी मलिका के साथ जाने दो, ताकि मैं वहाँ अच्छे अच्छे खाने खाकर उसके महल में आराम की नींद सो सकूं। बाकी मुलाकात कल होगी। ये कहते हुए सरतूज ने पानी में छलांग लगा दी और नाग रानी उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दी और नाग का रूप धार कर दूसरे नागों के साथ अपने मस्कन की तरफ रवाना हुई। जलपरी मलिका सरतूज को अपने महल में ले गई। सरतूज उसके महल में एक एक चीज को देखकर हैरान हो रहा था। यूं लगता था जहां भर के हीरे जवाहरात और कीमती सामान इस महल की आराइश पर लगा दिए गए हों। इस महल में शानदार कुर्सियां थी, मेजें थी, जिन पर तरह तरह के खाने लगे थे। सरतूज ने जलपरी मलिका के साथ खाना खाया और फिर जलपरी की इजाजत से एक मसेरी पर लेटकर ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगा।
وہ کب تک سویا رہا اسے معلوم نہیں، کیونکہ یہاں دن رات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جل پری نے ہی اسے اٹھایا۔ اس کی خدمت کے لیے 20 جل پریاں موجود تھی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے شاندار لباس پہنا جو جل پری نے اسے دیا تھا۔ اس لباس کو پہن کر وہ سچ مچ کا شہزادہ لگنے لگا تھا۔ اور پھر وہاں ناگ رانی آ گئی اور یہ تینوں خاصی دیر تک خوش گپیوں میں مشغول رہے۔ ناگ رانی، کیا وہ دن آ گئے ہیں جب میں بڑا آدمی بنوں گا؟ سرتوز ناگ رانی سے مخاطب ہوا۔ ہاں سرتوز، وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ناگ منی سونپ دوں اور اس ناگ منی کی مدد سے تم وہ خزانہ حاصل کر لو جو برسوں پہلے میں نے تمہیں دکھایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ناگ رانی نے ایک ڈبیا نکال کر سرتوز کی طرف بڑھا دی۔ سرتوز نے جیسے ہی اس ڈبیا کا ڈھکن کھولا، ایک چھپاکا ہوا۔ اس ڈبیا میں سے تیز روشنی نکل کر دور تک پھیلتی چلی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جواہرات کی وجہ سے محل جگمگا رہا تھا۔ ڈبیا میں ناگ منی موجود تھی، ایک ایسا پراسرار پتھر جس کی خوبیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ناگ منی کو حاصل کر کے سرتوز میں ایسی قوت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ دنیا کی تمام شیطانی قوتوں سے ٹکرا سکتا تھا۔ تو یہ وہ ناگ منی ہے جو سپیرا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ سرتوز بولا۔ ہاں، ناگ رانی نے جواب دیا۔ تم تو کہتی ہو جس کے پاس ناگ منی ہو وہ بہت بڑی قوتوں کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے سپیرے نے تم پر ظلم کیسے توڑے؟ تم اس کی قیدی کیسے بنی؟ سرتوز نے پوچھا۔ سپیرے نے مجھے اس وقت قابو کیا تھا جب ناگ منی ناگ بھون میں تھی۔ اگر میرے پاس ہوتی تو میں اس کا برا حشر کر دیتی، اور تم بھی ناگ منی کو بڑی احتیاط سے رکھو گے۔ تمہیں شاید علم نہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں انسان تک کو دو میں لگے ہوئے ہیں۔ ناگ رانی نے کہا۔ میں اسے اپنی جان کے ساتھ لگا کر رکھوں گا، تم فکر نہ کرو، تمہارا یہ تحفہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رہے گا۔ سرتوز بولا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جل پری بولی۔ میں یہاں سے ان کھنڈروں میں جاؤں گا اور اس خزانے کو حاصل کر کے ایک شاندار زندگی کا آغاز کروں گا، مگر کیا مجھے وہ دیوار گرانا پڑے گی جس سے اس کھنڈر کے زینوں کو راستہ جاتا ہے؟ سرتوز نے کہا۔ نہیں، اب تمہارے پاس ناگ منی ہے، تم اشارہ ہی کرو گے تو دیوار خود بخود ہٹ جائے گی۔ ناگ رانی بولی۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، مجھے دریا کے باہر نکال دو۔ وہ جل پری سے بولا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہیں شاید علم نہیں کہ ابھی تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، وہ سب باتیں تمہیں سمجھانا پڑیں گی۔ تم آرام سے بیٹھو اور میری باتیں غور سے سنو۔ جل پری بولی۔ اب میرے لیے کیا مشکل ہے؟ ناگ رانی کا تحفہ ناگ منی جو میرے پاس موجود ہے۔ سرتوز بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے دلچسپی آئینے میں تمہارے مستقبل کو دیکھا، اس پہ جو کچھ مجھے نظر آیا وہ خوش کن بھی ہے اور کچھ پریشان کر دینے والا بھی۔ جل پری بولی۔ اگر اسے کوئی پریشانی ہوگی تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ ناگ رانی بیچ میں بول پڑی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مقدر کے لکھوں کو بھی کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جل پری بولی۔ تم پہلے مجھے وہ خوشکن بات بتاؤ اور جو مشکلات آئیں گی ان سے نپٹ لوں گا۔ سرتوز بولا۔ خوشکن بات تو یہ ہے کہ تمہارے ملک کا بادشاہ اپنی بیٹی تم سے بیاہ دے گا جو خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر تمہارا سخت دشمن ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی شہزادی سے کرنا چاہتا ہے تاکہ شہزادی کے ساتھ ساتھ پورے ملک پر اس کا قبضہ ہو جائے۔ وہ بہت بڑا جادوگر بھی ہے اور وہ اپنے جادو سے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مگر تم جانتے ہو کہ کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ جب وہ اس میں ناکام ہوگا تو اپنے آدمیوں سے تمہیں قتل کروانا چاہے گا، جس کے لیے ناگ رانی کا ناگ تمہاری حفاظت کرے گا اور کوئی شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ سرتوز بولا۔ جس کے بارے میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اس بات نے جہاں سرتوز کو پریشان کر دیا وہاں ناگ رانی بھی فکر مند ہو گئے، مگر پھر ان دونوں نے اسے خدا کے سپرد کرتے ہوئے رخصت کیا اور دریا کنارے لا چھوڑا۔ سرتوز نے ناگ منی کی ڈبیا اپنی کمر بند میں رکھ لی اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والے سخت پریشان تھے، خاص کر اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ راستے میں سرتوز کا ایک دوست ملا، سرتوز کو دیکھتے ہی بولا، ارے سرتوز، تم کہاں تھے؟ تمہارے گھر والے تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہیں، تمہاری ماں کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ سرتوز نے یہ سنا تو تیز تیز گھر کی طرف بڑھا۔ محلے میں داخل ہوا تو لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کوئی سمجھا سرتوز کو بادشاہ نے اپنا وزیر بنا لیا ہے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے اسے روک کر پوچھنا بھی چاہا، مگر سرتوز نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا مکان میں داخل ہوا۔ اس کے ماں باپ چچا چچی نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر ماں پر اس کے لباس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سرتوز بیٹا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ تمہیں اپنی بوڑھی ماں کا خیال بھی نہیں آیا؟ یہ کہتے وہ سسکیاں لینے لگی۔ ماں، میں صرف 2-3 دن ہی تو گھر سے باہر رہا ہوں، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر بیٹے، کہیں جانا تھا تو بتا کر جاتے، سرتوز کے باپ نے کہا، جو اس کا لباس دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ بس بابا،
अचानक किसी को मदद की जरूरत पड़ गई थी और मुझे उसकी मदद करना पड़ी। सरतूज बोला, क्या वो कोई बहुत बड़ा आदमी था? मेरा मतलब है कोई वजीर या बादशाह या कोई मुलाजिम है? सरतूज के चचा ने पूछा। नहीं चाचा जान, मगर जो कोई भी था वो बादशाहों से कम हैसियत न था। सरतूज बोला। उसकी बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा बेटा, पहले कुछ खा पी लो ना, जाने कब के भूखे हो। उसकी माँ बोली। नहीं माँ, मैंने खूब पेट भर कर खाया है। सरतूज बोला। लो भले मांस, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ गया। अब मैं खेतों पर जाऊं? 2 रोज से कोई काम नहीं किया। सरतूज का बाप उसकी माँ से मुखातिब हुआ। नहीं बाबा, अब आप लोगों में से कोई काम नहीं करेगा, ना आप और न चाचा जानी। सरतूज बोला। तो बेटा फिर हम खाएंगे कहाँ से? सरतूज के चचा ने कहा, आप लोग मेरे साथ हैं और जितनी दौलत चाहते हैं बैलों पर लाद लाएं। सरतूज ने कहा, तो क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? उसके बाप ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ बाबा। और फिर वो अपने चचा से मुखातिब हुआ। चचा जानी, आपको याद होगा जब मैं 10-11 बरस का था तो आप मुझे पुराने खंडरात की सैर कराने ले गए थे और आपने बताया था कि यह खंडरात किसी जमाने में एक कंजूस बादशाह का महल था, मगर आपको ये इल्म नहीं था कि उन खंडरात में इस कंजूस बादशाह का खजाना पोशीदा है। मैंने वो खजाना उन दिनों देख लिया था। अब मैं आप लोगों को उसी खजाने के पास लेकर जा रहा हूँ। सरतूज कहता चला गया। तो बेटा, तुमने उस वक्त मुझे बताया क्यों नहीं था? और तुम्हें इस खजाने का इल्म किस तरह से हुआ था? हालांकि वहां सैकड़ों लोग जाते हैं, मगर आज तक किसी ने वहां कोई खजाना नहीं देखा। सरतूज के चचा ने पूछा। मगर सरतूज अभी पूरी बातें बताना नहीं चाहता था। वो बोला, बस चाचा जान, उन दिनों मुझे खजाने की हल्की सी झलक नजर आई थी और मैं आज तक उसी को देखने की तगो-दू में लगा रहा। आप लोग समझे मैं आवारा और निकम्मा हूं, मगर ये बात न थी। हर बात का एक वक्त होता है। खुदा ने वो दौलत मुझे अब देना थी, इसलिए मुझे इस खजाने का इन दिनों ही पता चला। सरतूज ने कहा, और फिर वो अपने चचा और बाबा के साथ उन खंडरात की तरफ चल दिया। उन लोगों ने बैलगाड़ी भी साथ ले ली थी। बैलगाड़ी को उन्होंने खंडरात के करीब छोड़ा और सरतूज उन्हें लेकर उस मकाम पर पहुंचा जहां दीवार मौजूद थी। बेटे, यहाँ तो दीवार है, तुमने खजाना कहाँ देखा था? सरतूज के बाप ने पूछा। अभी बताता हूँ बाबा। ये कहते हुए सरतूज ने हाथ का इशारा किया तो दीवार सरक गई और जीना नजर आने लगी। सरतूज आगे बढ़ा और जीना तय करने लगा। उसका बाबा और चचा भी उसके पीछे हो लिए, मगर वो जू जू आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इस बात की परवाह न करते हुए ये लोग आगे बढ़ते रहे और फिर नीचे से रोशनी होने लगी जो उनके नीचे पहुंचने तक पूरी तरह वाज़ेह हो गई। अब उन लोगों के सामने वो खजाना मौजूद था। ये लोग सारा खजाना तो लेकर जा नहीं सकते थे, इसलिए इतना कुछ लिया कि जिससे बहुत कुछ कर सकते थे। जब ये लोग खजाने का कुछ हिस्सा लेकर बाहर निकले तो दीवार फिर असली हालत में आ गई। उन लोगों ने खजाने को गाड़ी में लादा और घर आ गए और खजाने को महफूज कर लिया। सबसे पहले उन लोगों ने उस दौलत से खंडरात वाली जमीन खरीद ली और फिर खंडरात का ऊपर का हिस्सा ढाकर वहां एक शानदार इमारत बनवाई। उसके लिए खूबसूरत फर्नीचर खरीदा, मुलाजिम रखे और ठाट बाट से रहने लगे। उनकी इस ठाट बाट की जिंदगी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। एक दिन वो शिकार खेलता हुआ उसी इमारत के करीब से गुजरा तो हैरान रह गए। उसने सरतूज को भी देखा जो शहजादों के से लिबास पे था। उसे सरतूज बहुत पसंद आया और उसने अपनी बेटे की शादी सरतूज से कर दी। बस फिर क्या था, बादशाह के वजीर के लिए ये सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त था। वो मौके की तलाश में रहने लगा जब सरतूज को रास्ते से हटा सके। पहले तो उसने अपने आदमी भेजकर उसे कत्ल करना चाहा, मगर जो लोग सरतूज को हलाक करने गए थे, नागों ने उन्हें डस लिया और सबके सब मारे गए। अब तो वजीर को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी असलियत पर उतर आया। एक दिन जब सरतूज सुबह की सैर को बाग में गया तो वजीर वहां मौजूद था। उन्होंने जादू की हंडिया उड़ाई जो तेजी के साथ सरतूज की तरफ बढ़ी और आधे रास्ते ही में वो फिजा में फटी और सरजमीन पर उसकी ठिकरियां आन गिरी। सरतूज ने भी देखा मगर वो समझ नहीं सका। मगर फिर अचानक वजीर एक भयानक रूप में सरतूज के सामने आया और उसने 1-2 मंत्र और आजमाए, मगर सरतूज पर तो कोई जादू असर नहीं कर सकता था। अब तो वजीर घबराया। उसने अपने इल्म से ये जानने की कोशिश की कि आखिर सरतूज के पास कौन सी कुव्वत है जिसकी वजह से उस पर जादू असर नहीं कर रहा। और फिर जल्द ही उसे मालूम हो गया कि सरतूज के पास नागमणि है। ये जानकर वजीर हैरान रह गए। वो नागमणि की कुव्वत जानता था। अब तो वो सरतूज से नागमणि हासिल करने की कोशिश में मसरूफ हो गए ताकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सके। इस काम के लिए उसने एक बुढ़िया का इंतखाब किया जो निहायत चालाक थी। उसने बुढ़िया को लालच दिया कि अगर किसी तरह उसने सरतूज से वो डिबिया उड़ा ली जो हर वक्त अपनी कमर बंद में रखता है तो उसे माला माल कर देगा। एक दिन सरतूज दरिया की सैर के लिए कश्ती पर सवार हुआ और कश्ती को खेता हुआ दूसरे किनारे पर आया। अचानक उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी जो दूसरे किनारे पर जाने के लिए किसी कश्ती का इंतजार कर रही थी। सरतूज को उस पर तरस आ गया और वैसे भी उसने वापस जाना था। उसने बुढ़िया को कश्ती पर बिठा लिया। जब कश्ती मंझधार में पहुंची तो बुढ़िया ने अपनी पोटली में से हलवा निकाला
और ये कहते हुए सरतूज की तरफ बढ़ाया, ये तबरुक है, खा लो। सरतूज ने थोड़ा सा हलवा लेकर मुंह में डाला तो चंद दमों में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बुढ़िया ने मौका पाकर वो डिबिया निकाली और सरतूज को दरिया में धक्का देकर गिरा दिया। उसका ख्याल था कि सरतूज डूबकर मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर जब उसकी कश्ती दूसरे किनारे पर लगी तो उसने अपने सामने वजीर को पाया। उसने जल्दी से वो डिबिया उसके हवाले कर दी और इनाम का तकाजा किया। ये देखकर वजीर ने एक जोरदार तमाचा बुढ़िया को रसीद कर दिया। बुढ़िया खौफजीदा होकर वहां से भाग गई। दरअसल वजीर के रूप में नाग रानी थी। उसने बुढ़िया को सरतूज को दरिया में फेंकते देख लिया था, इसलिए वो भी दरिया में कूद पड़ी। उधर वजीर का एक मुलाजिम जादूगर छुपकर ये सब माजरा देख रहा था। वो भी दरिया में कूद पड़ा और सरतूज तक जा पहुंचा। पानी में गिरते ही जब सरतूज के मुंह में पानी गया तो वो झट होश में आ गए, मगर फिर उसने तैरने के लिए जैसे ही हाथ पांव मारना चाहे, जादूगर अपने जादू के जोर से उसे अपने किले में ले गए और सरतूज को जंदान में डाल दिया। इस तरह सरतूज के बुरे दिन शुरू हो गए। उधर जब वजीर ने देखा कि बुढ़िया उसके महल में नागमणि लेकर नहीं पहुंची तो वो खुद उसके घर गया। बुढ़िया ने जो उसे देखा तो वो खौफ से कांपने लगी। लाओ वो डिबिया दो और अपना इनाम लो। वजीर बोला, कौन सी डिबिया? वो तो मैंने दरिया के किनारे आपको दे दी थी और आपने इनाम देने के बजाय मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दिया था और मैं खौफ के मारे घर आकर बैठ गई। वजीर समझ गया कि बुढ़िया सच बोल रही है। सरतूज का जरूर कोई मददगार है जिसने ये हरकत की है। वो वापस किले में आया और उसने सरतूज को अजियत देकर ये जानने की कोशिश की कि वो डिबिया कहाँ है। सरतूज ने हर किस्म के जुल्म सह लिए मगर नाग रानी और जलपरी के बारे में कुछ न बताया। यह देखकर वजीर वापस चला गया। उसने सरतूज के घर वालों से ये जानने की बहुत कोशिश की कि सरतूज का कोई जादूगर मददगार है, मगर उसके घर वालों को तो ये मालूम ही नहीं था कि नाग रानी सरतूज के मददगार है। वो क्या बताए। इसी तरह सरतूज के घर वाले ही नहीं, उसकी बीवी और बादशाह भी सरतूज के लिए सख्त फिक्रमंद थे। और फिर एक दिन नाग रानी उस जादूगर के किले में छुप कर गई जिसने वजीर का मुलाजिम होने के बावजूद सरतूज को उससे छुपा रखा था। उसने सरतूज को नागमणि की डिबिया दे दी और कहा, सरतूज बादशाह के दरबार में पहुंचो। वजीर भरे दरबार में अपने साथियों की मदद से बादशाह को कत्ल करना चाहता है। उसकी मदद को पहुंचो, उसका काम तमाम कर दो और उसका काम तमाम कर दो। ये जानकर सरतूज परेशान हो गए और नाग रानी के उस नाग की मदद से लम्हों में ही वो बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। उसे देखकर वजीर खौफजीदा हो गया और चाहता था कि वहां से भाग उठे, मगर सरतूज ने आगे बढ़कर उसका काम तमाम कर दिया। बादशाह सरतूज की इस हरकत पर हैरान हो गए। सरतूज ने बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो बादशाह के हुक्म से वजीर के तमाम साथी गिरफ्तार करके हलाक कर दिए गए। अब वजीर हलाक हो चुका था। बादशाह ने हुकूमत सरतूज के सुपर्द की और सरतूज ने कंजूस बादशाह के खजाने को रियाया पर खूब खर्च किया, जिससे मुल्क के तमाम लोग खुशहाल हो गए और सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं मगर ना ही लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यार बहुत मेहनत लगती है। मिलता हूँ किसी ऐसी ही कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।